اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. دیکھیے ظہر کے بعد سے ہی اس اسٹیج سے خطاب ہو رہا ہے نا؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ، کیا بات ہے؟ اس لیے پہلے دو بات کو سمجھ لیجئے تب ہم اپنی بات شروع کریں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ دل ہی دل میں یہ دعا کیجئے کہ یہاں سے جو بھی پیغام آپ کو ملے اس پر پیغام دینے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق بخشے. پہلی دعا تو دل ہی دل میں یہ کیجئے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب کبھی آپ سے کچھ پوچھا جائے تو آپ سر مت ہلائیے گا، بلکہ زبان کھولیے گا، جی ہاں نہیں کچھ تو بولیے گا نا. ابھی وہی امتحان ہو رہا، بولیے گا نا. ہاں انشاءاللہ بولیں گے انشاءاللہ. تب کہ یہ اندازہ لگے کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں، بولنے والے کو یہ احساس ہو کہ آپ بیدار ہو کر کے سن رہے ہیں. پتہ چلا کہ بولنے والے بولے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے ایسے گھٹنا اندر لگا کر کے اور نیند کے آغوش میں ہیں تو مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر کے نکلے تو ہم نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ خالی الذہن ہے، کس عنوان پہ ہم کو تقریر کرنا چاہیے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ عورتوں کے عنوان پر تقریر ہوئی ہے اور عورتوں کو بتلایا گیا ہے کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں شوہر کے ساتھ، ان کا کیا رویہ رہنا چاہیے. تو آپ ایسا کیجئے گا کہ مردوں کو سمجھا دیجئے گا کہ مردوں کو کیا کرنا چاہیے. بعض دوست نے کہا کہ ہاں اتحاد و اتفاق کی سخت ضرورت ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیجئے گا. یہ بات بھی آئی کہ کچھ طلاق کے عنوان پر بھی روشنی ڈال دیجئے گا. یہ بھی بات آئی کہ وراثت جو اپنے یہاں تقسیم نہیں کی جاتی ہے ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے گا. کسی بولنے والے نے کہا کہ آدمی ایک ہے عنوان انیک ہے، بیچارے کس پر بولیں گے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. خود میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی آپ کے علاقے ہی کے بڑے معروف قاری ہیں قاری ساجد صاحب، ان کی چائے پی رہے تھے تو میں نے اس وقت کہا کہ چلیے عورتوں کے عنوان پر تقریر ہو گئی ہے تو اب تھوڑی بات مردوں سے بھی ہو جائے. تو آپ لوگ تیار ہیں مردوں والی بات سننے کے لیے؟ ہاں ماشاءاللہ بڑے بیدار لوگ. اچھا ایک بات بتلائیے، جو لوگ شادی شدہ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بتائیے. اصلاً یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ تو ہونی ہی شادی، ابھی ہاتھ اٹھا دو تاکہ نمبر جلدی آ جائے، ہے نا عزیزو. بہرحال ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں اور اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں. آپ سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ آپ اطمینان اور سکون کا ماحول بنا کر رکھیں. جو باتیں میں کہنے والا ہوں وہ حضرات غور سے سنیں گے جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ نوجوان بھی غور سے سنیں گے جن کی بات چیت لگ گئی ہے، وہ بچے بھی غور سے سنیں گے ابھی شادی کے مرحلے میں نہیں پہنچے ہیں لیکن ہر حال میں ان کو شادی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. گویا کہ جن کی شادی ہوئی، جن کی ہونے والی ہے، جن کی نہیں ہوئی ہے، ہر شخص کو بغور سننا چاہیے چونکہ آپ ہی سے متعلق باتیں ہونے جا رہی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ہم اس حدیث کو پہلے پڑھ دیتے ہیں، آپ بغور سنیے. عن معاویۃ بن حیدۃ انہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجۃ احدنا علیہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک آدمی اپنے بیٹے کو پالتا ہے، ایک آدمی اپنی بچی کو پروان چڑھاتا ہے، شادی کی عمر ہوتی ہے تو آپس میں رشتہ ہوتا ہے. ایک 18 سال کی بچی، 20 سال کی بچی، 16 سال کی بچی
जो अपने माँ बाप के मोहब्बत में पली और बढ़ी, अपने खानदान की मोहब्बत में पली और बढ़ी, सिर्फ 2 बोल के जरिए से वो लड़की एक अजनबी मर्द की बीवी बन करके शरई नुक्ते नज़र से उसकी शरीके हयात बन करके उसके घर में आ जाती है। अब अंदाज़ा कीजिए कि 16 साल तक, 18 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक जो मोहब्बत उसको मिली है, उन सारी मोहब्बतों को वो कुर्बान कर देती है यकलख्त, और सबको छोड़ करके एक अजनबी का हाथ थाम करके वो उसके घर हो जाती है और अपना जीना मरना सब उसके साथ कर लेती है, अपना दुख और सुख सब उसके साथ जोड़ लेती है। क्या ऐसे मर्द को नहीं चाहिए कि जिस औरत ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसकी दिलजोई का सामान किया जाए, उसकी राहत और आराम का ख्याल रखा जाए? क्या ये मर्दों की जिम्मेदारी नहीं बनती? बोलिए ना भाई। आपको अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है और चंद दिनों की मोहब्बत होती है, अगर उसकी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है तो आप मोहब्बत के रिश्ते को तोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि बिला वजह उससे हमने मोहब्बत कर रखी थी, हमने दिल जोड़ रखा था, ये अच्छा था कि अजनबियत रहती, आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। और जो औरत 16 साल, 18 साल, 20 साल की मोहब्बत को कुर्बान करके आपकी मोहब्बत पर लब्बैक कह रही है, तो अगर आपकी तरफ से अगर उस बच्ची के दिल को ठेस पहुंचेगी तो बतलाइए, वो बच्ची अगर अपनी जुबान से बोले या ना बोले, लेकिन उसका खुदा तो उसकी दिल की हालत को जानता है। कल क़यामत के मैदान में जवाब देने के लिए हमको और आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए एक सहाबी ने, हजरत मुआविया ने ये दरियाफ्त किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में हमारी औरतें हैं, उन औरतों के सिलसिले में हमारे ऊपर क्या हक वाजिब होते हैं, क्या जिम्मेदारियां हम पर बनती हैं? उन औरतों के सिलसिले में वो दूसरे के घर से आई है, पराई बच्ची है, वो मेरे ऊपर कुर्बान हो रही है, मेरे घर का सारा काम काज कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है, मेरे जरिए से जो औलाद हो रही है उसकी तालीम और तरबियत और परवरिश का काम अंजाम दे रही है, मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, उनके लिए भी वो मेहनत कर रही है, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी भी खिदमत कर रही है, मेरी बहनें हैं, उनकी भी देखरेख कर रही है। आखिर वो जो आई है तो क्या हमारे ऊपर भी उस औरत की कोई जिम्मेदारी है? तो इस हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद जिम्मेदारियों का तज़किरा किया है कि मर्द के ऊपर ये चंद जिम्मेदारियां हैं और यही मुकम्मल जिम्मेदारियां नहीं है। बाज़ और हदीसों में मजीद और जिम्मेदारियां बयान की गई हैं, लेकिन मैं इस वक्त इन्हीं चंद जिम्मेदारियों को जो इस हदीस में बयान किया गया है मैं बयान करके रुखसत हो जाऊंगा। कहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, अन तुतइमहा इज़ा तइमता, तुम जो खाओ उसको भी खिलाओ, तुम जो खाओ उसको भी खिलाओ। यानी अल्लाह ने तुमको जो सलाहियत दी है, जो हैसियत दी है, उस हैसियत के मुताबिक उसके खाने पीने का इंतजाम करो। वतक्सूहा इज़ा तसैता, और उसको अपनी हैसियत के मुताबिक लिबास भी दो। वला तजरिबिल वजह, चेहरे पर मत मारो। वला तुकब्बिह, और उसको गालम गलोज मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, अगर बहुत ज्यादा तुमको परेशानी होने लगे उसकी तरफ से और बहुत ज्यादा शिकायतें मिलने लगे तो तुम उसको धक्के देकर घर से भगाओ मत। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, अलबत्ता घर में जरा उलट पुलट कर लो, बिस्तरा अलग थलग कर लो, या बिस्तरा अलग नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसी शक्ल अपनाओ ताकि ये अंदाजा लगे कि मेरा शौहर मुझसे नाराज है। ये हदीस का तर्जुमा मैंने किया है आपके सामने, अब थोड़ी इसकी तशरीह भी सुनते चलिए। अंतुतइमहा इज़ा तइमता, कि अपनी हैसियत के मुताबिक इंसान अपने आलो औलाद के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करे। अल्लाह का करम है कि हमारा जो ये सीमांचल का खित्ता, बल्कि हर जगह तकरीबन ये चीज़ सामने आती है कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक खुद खाता भी है और अपने घर की बीवी को और बच्चों को भी खिलाने की पूरी कोशिश करता है। वतक्सूहा इज़ा तसैता,
जो पहनते हो वो उसको भी पहनाओ अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक उसको पहनाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारा समाज पीछे नहीं है। एक कपड़े नहीं, हर त्योहार के मौके पर कपड़े, हर शादी ब्याह के मौके पर कपड़े, हर वक्त कपड़े ही कपड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह मर्द के पास उतने जोड़े बसा औकात नहीं होते हैं जितना उनकी बीवी के पास जोड़े आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में भी जो है हमारा समाज बहुत आगे है। लेकिन आगे जो दो बातें, तीन बातें कही गई है, वला तजरिबिल वजहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चेहरे पर मत मारो। इससे पता ये चलता है कि औरत बदमाशी कर सकती है। समझ लीजिए बात को, औरत शरारत कर सकती है। जाहिर सी बात है, जब बदमाशी करेगी, शरारत करेगी, सुनी अनसुनी करेगी, तभी ना मारने की नौबत आएगी। इससे पता ये चला कि मर्द को बदमाशी नहीं करना चाहिए, मर्द को सब्र से काम लेना चाहिए। पता ये चला कि औरत बदमाशी कर सकती है, औरत शरारत कर सकती है, औरत जो है मर्द को तकलीफ पहुंचा सकती है। ये सब होने की वजह से अगर मारने की नौबत पड़ जाए तो वला तदरिबिल वजहा, सुनो चेहरे पर कभी मत मारना, कभी मत मारना। एक हदीस में आता है कि खबरदार, जब भी अगर कभी तंबीह की जरूरत पड़ जाए तो डंडे से नहीं मारना है, हाथ से नहीं मारना है, किसी भारी भरकम चीज से नहीं मारना है। किससे मारना है? मिसवाक से मार सकते हो। अरे मिसवाक की लंबाई ज्यादा से ज्यादा आजकल बतलाते हैं कि 1 बालिश थी ना, हाँ बतलाइए कि इससे चोट लगेगी। मकसद ये है कि तुम उस पर मिसवाक उठाओ, उसको ये एहसास हो जाए कि मेरा शौहर मुझसे नाराज है और मुझको मारने पर उतारू हो गया है। अगर मैंने इसके बाद कोई शरारत की तो मुमकिन है कि इससे कहीं ज्यादा सख्त मार पड़ जाए। मकसद सिर्फ तंबीह करना और औरत को उसकी शरारत से रोकना है। और आजकल सूरत हाल क्या है मालूम है? आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बाकार हैं, बहुत सारे मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य सब लोग इसमें हैं, वो पंचायती करते रहते हैं। पता चला कि बीवी को इतनी बुरी मार मारा कि जो है 2 दिन से वो बिस्तरा पकड़ी हुई है। बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ? मैं यहाँ डगरवा मदरसे में रहता हूँ, ये 2003-4 की बात है, बल्कि उसके बाद की बात है, बहुत करीब का वक्त है कि एक औरत आई, जिस्म लहूलहान है, जगह जगह फटे हुए हैं और उसको तलाक दे दी गई है, शौहर ने तलाक दे दिया है। पूछा कि भाई क्या बात है? वो औरत ज़ारो कतार रो रही है, उसकी माँ उसके साथ है और समाज की एक चची उसके साथ है। पूछा आखिर माजरा क्या है? कहा मुफ्ती साहब, मेरा शौहर मकई के खेत में काम कर रहा था और मुझको खाना लेकर के जाना पड़ता था। आज मेरे रिश्ते के कुछ लोग मेरे घर पर आ गए और मुझको उन्हीं के खातिरदारी की वजह से वक्त पर खाना ले जाने में ताखीर हो गई। मैं 1 घंटे लेट खाना लेकर के पहुंची तो मेरे शौहर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आज देर करके क्यों आई। वो मकई का उखाड़ा और उसी से मुझको उसने खेत में इस बुरी तरीके से मारा है कि मेरा जिस्म आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। बोलो मेरे भाइयों, कुरान भी मना करता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी मना करते हैं कि अगर मारने की भी नौबत आए तो एक तो चेहरे पर ना मारा जाए, और अगर बहुत सख्त जरूरत पड़ जाए मारने की तो मारो तो मिसवाक से मारो। बाद रिवायतों के मुताबिक ये रुमाल के पल्लू से भी मारने का हुक्म आया है। बच्चे खेलते हैं रुमाल से, ऐसे एक दूसरे को मारते हैं, उसके किनारे से चोट लगती है। और आज यहाँ सूरत हाल ये है कि डंडा उठाया और जिस तरह एक जानवर को भी आदमी पीटना गवारा नहीं करता है, वो अपनी रफीक हयात को मारने के लिए जो है तैयार हो जाता है। बोलो इंसानियत शर्मसार हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐ नौजवानों, ऐ वो लोगों जो अपनी बीवी पर हाथ उठाते हो, याद रखो कल कयामत का मैदान होगा, सारे इंसान जमा होंगे, तुम्हारा वो हाथ लकवा ज़दा होगा, फालिज मारा होगा, सारी दुनिया के इंसान देखेंगे ये कौन बदनसीब शख्स है जो अल्लाह के दरबार में हिसाब व किताब के लिए आज मैदान महशर में जमा हुआ है। तो उसका हाथ सल है, उसके हाथ में लकवा मारा हुआ है। आवाज आएगी कि ये वो नाहंजार शख्स है जिसने कल दुनिया में अपनी बीवी पर हाथ उठाया।
بولو ہے ہمت، ہے جرات کہ کل قیامت کے میدان میں اس کا آپ سامنا کر سکے؟ وہ بیوی جو آپ کی مار سہ کر کے بھی آپ کی محبت پر فدا ہے اور آپ کے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ کے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ کے در سے جانے کے لیے تیار نہیں، آپ نے اس کو اتنا زخم پہنچایا ہے، اتنی تکلیف پہنچائی ہے، یاد رکھیے کل قیامت کے میدان میں وہ بیوی ہوگی اور آپ کا دامن ہوگا، جب تک آپ سے حساب چکتا نہیں کر لیا جائے گا اس مار کا، آپ نہ تو جنت کی طرف بڑھ سکتے ہیں نہ جہنم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج طے کرو، جن لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اپنی بیوی پر آج تک ہاتھ اٹھایا ہے بلا وجہ، تو آج توبہ کر لے اور گھر جائے اور اپنی بیوی سے معافی مانگ لے، چونکہ یہ حقوق العباد ہے، جب تک بیوی معاف نہیں کرے گی اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے اور اس کا جواب دہ آپ کو اور ہم کو ہونا ہوگا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو یہ ذمہ داری دی کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی بھی چہرے پر مت مارنا، وَلَا تُقَبِّحْ، اور بیوی کو گالم گلوج مت کرنا۔ آج کیا ہوتا ہے، معمولی بات پر جو ہے اس کو بھی گالی دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں، اس کے خاندان کو بھی گالی دے دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بیوی کو اور سسرال والوں کو گالی دینا یہ اس کے لیے فرض اور واجب کا درجہ اختیار کر لیا، نہیں گالی دے گا تو اس کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا۔ بعض ایسے ناہمزار لوگ اس سماج میں جی رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں۔ بولیے ہے نا کچھ نوجوان ایسا؟ سماج میں، ہر سماج میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہاں ہے اور دوسری جگہ نہیں ہے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن یاد رکھو، آج گالی دے رہے ہو، کل قیامت کے میدان میں تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی، لٹکا دی جائے گی زبان، اور اس وقت تم ایسے ہانپو گے۔ آپ نے گرمی میں دیکھا ہوگا کہ کتا زبان باہر نکالے ہوتا ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے اور اس کی زبان سے رال ٹپکتی رہتی ہے۔ ٹھیک یہی کیفیت ان نوجوانوں کی ہوگی، ان مرد کی ہوگی جو اپنی بیوی کو گالی بکتے ہیں اور بیوی کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو گالی بکتے ہیں، ان کی زبان باہر ہوگی اور وہ کتے کی طرح ہانپتے ہوئے کل قیامت کے میدان میں ہوں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آج طے کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی بیوی کو گالی نہیں دیں گے۔ یہ آج کل جو اینڈرائیڈ موبائل نکلا ہے نا، اس نے تو بڑا فتنہ پھیلا رکھا ہے، بہت فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ کیا فتنہ پھیلا رکھا ہے؟ شادی ہوگی اور دلی جائے گا، پنجاب جائے گا تو ایک اینڈرائیڈ موبائل بیوی کو بھی دھرا کر کے جائے گا اور ایک اپنا لے کر کے جائے گا۔ اور ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ بیوی کو موبائل دے کر کے گیا اور پھر 6 مہینے کے بعد آیا اور یہاں لفا شوٹنگ میں جو ہے خوب پیسہ اڑا دیا، اور جب جانے لگا تو اپنا موبائل بیوی کا موبائل دونوں بیچ کر کے تب پیسہ لے کر کے تب پھر گیا ہے اور بولا ہے کہ جو ہے بیوی کو کہ ٹھیک ہے پیسہ کماوے گے نا تو وہاں سے پیسہ بھیج دیں گے، تم فلاں کے یہاں جا کر موبائل خرید لینا۔ یہ ایسی نوبت آ جاتی ہے ان نوجوانوں کو۔ اور گرمی دیکھیے گا تو ایسا لگتا ہے کہ ساتوں آسمان پر اس کی گرمی پہنچی ہوئی ہے۔ سماج میں کوئی بوڑھا پرانا اس کو نظر نہیں آتا ہے، سماج کا کوئی آئیڈیل اور نمونہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ اپنا الگ نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ موبائل دے دیا، چلا گیا دلی اور پنجاب، وہاں سے فون کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ جس وقت لڑکا فون کر رہا ہے لڑکی بیٹھی ہوئی ہو موبائل لے کر کے کہ میرا شوہر فون کرنے والا ہے۔ ضرورت پڑی وہ استنجا خانے میں ہے، گھنٹی بجی نہیں اٹھائی، اب ظاہر سی بات ہے کہ لیٹرنگ روم میں بیٹھ کر کے عورت موبائل تو ریسیو نہیں کرے گی۔ اب جب تک نکل کر کے آئی گھنٹی بجنا بند ہو گیا، 1-2 گھنٹے کے بعد پھر فون کیا، پتا چلا کہ اس وقت اس کے بیٹے نے پیشاب پخانہ کر دیا تھا، وہ اس کو ٹویل پر جا کر دھل رہی تھی۔ دوسری مرتبہ بھی گھنٹی بج کر کے رک گئی، اب شام کو فون کرے گا، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، وہاں سے فون ہوا تو اٹھایا بیوی نے، تو فلاں کی ماں، ہاں امی کو فون دو۔ وہ غصے میں کہتا ہے امی کو فون دو، وہ اپنی امی کو فون دے گا، دلوائے گا اور پوچھے گا کہ ہم گالی دے کر کے پوچھے گا، ہم لوگ کیا گالی بکیں گے، گالی دے کر کے پوچھے گا کہ وہ کہاں تھی 2 مرتبہ ہم نے فون کیا، آخر فون ریسیو کیوں نہیں کیا۔ اور یہ جو ماں جو ہے، ہاں کبھی کوئی خدمت میں تھوڑی سی بیچاری سے چوک ہو گئی
तो उसका बदला निकालने का मौका तलाशती रहती है, ये फौरन नमक मिर्च लगाती है। बेटा क्या बतलावेंगे, जब से तुम गए हो घर की हालत क्या बतलावेंगे। वो तो बेलगाम है, उसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अब कहाँ थी नहीं थी हम कुछ नहीं बता सकते बेटा, अगर कुछ बोल देंगे सुन लेगी तो जो है जहर हो जाएगा। अब ये जो है उसकी माँ नमक मिर्च लगा करके किसी खिदमत की कोताही का बदला निकालने के लिए ऐसा नमक मिर्च लगाती है कि वो उसको गाली भी बकती, दो गाली बक करके कहती है, माँ के सामने भी गाली बकता है मोबाइल पे कि फला को दो, अभी हम बतलाते हैं। मोबाइल दिया और 10 गाली के साथ साथ 3 तलाक नहीं बल्कि 10 तलाकें भी दे देता है। बोलो मिनटों में माँ ने, सास ने नमक मिर्च लगा दिया पुतों के बारे में, बहू के बारे में, उसकी वजह से। और 2 वक्त मोबाइल किया, किसी मजबूरी की वजह से रिसीव नहीं कर सकी, तो इसी वजह से हंसता खेलता घर, उसमें जो छोटे छोटे मासूम बच्चे खिलखिला रहे थे, वो फूल खिल रहा था, वो कलियां चटक रही थी, उस तलाक की वजह से सारा घर मुरझा गया, सारे घर पर मातम छा गया और ऐसी नहुसत बरतने लगी कि अल्लाह की लानत का मुस्तहिक वो घराना बन जाता है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आज मोबाइल का इस्तेमाल सही तौर पर नौजवान करने लगे और ये जरूरत महसूस करने लगे कि जिस वक्त हम भी जरूरत पर होते हैं तो बसा औकात मोबाइल रिसीव नहीं कर पाते हैं, अगर यही तसव्वुर कर ले कि हमारी बीवी भी जरूरत में होगी, हमारी बीवी भी किसी परेशानी में होगी, मुमकिन है कि उस वक्त उसको जरूरत हो या मोबाइल से दूर हो, तकाजे में हो, चलो फिर किसी वक्त बात कर लेंगे और बीवी से जरा खैरियत मालूम कर लेंगे। अगर ये मिजाज बना करके अगर फोन करेगा तो बोलिए तलाक की नौबत आएगी? न गाली देने की जब नौबत नहीं आएगी तो फिर तलाक ही की नौबत कहां से जाएगी। इसलिए मेरे नौजवानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तुक़ब्बिह, गाली मत दो। अगर गाली दोगे तो याद रखो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि बाद ऐसे लोग होंगे जो अपने माँ बाप को गाली बकेंगे। सहाबा को ताज्जुब हुआ कि अपने माँ बाप को लोग कैसे गाली बकेंगे। कहा कि गाली इस तरह बकेंगे कि तुम किसी के बाप को गाली बकोगे तो वो उल्टा तुम्हारे बाप को गाली देगा, तो ये ऐसा ही है जैसा कि तुमने अपने बाप को गाली दिया। तो जाहिर सी बात है, बीवी को गाली बकते रहिएगा तो एक दिन ऐसी भी नौबत आएगी कि मने मन वो बड़बड़ा करके गरचे आपको न सुनावे, आपके बाप माँ को भी वो गाली बकने पर आ जाएगी और आप सुनेंगे नहीं, लेकिन आपको अपने बाप की तरफ से, आपके बाप को गाली पड़ती रहेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, आज तय करो कि इंशाअल्लाह न बीवी को मारेंगे और न बीवी को गालम गलोच का निशाना बनाएंगे। नहीं न बनाएंगे? कौन लोग नहीं बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए। बाद लोग हाथ समेटे हुए हैं। अच्छा, जो लोग अपनी बीवी को आज से गाली देंगे हाथ उठाइए तो। वहां देखिए, देख लिए ना। बड़े हाल वो बेख्याली में बेचारे ने उठा लिया होगा, वरना उनका भी ये इरादा नहीं होगा। हो जाता है बड़े हाल। आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तहजुर इल्ला फिल बैत। और याद रखो, कभी आपस में झगड़ा हो जाए, कभी आपस में तनाज़ो हो जाए, कभी आपस में तू मैं हो जाए तो बीवी को धक्के मत दो, बीवी को घर से ना निकालो, ये मत कहो कि तुम यहाँ से चली जाओ, अपने मैके चली जाओ, ऐसी गलती हरगिज मत करो। अगर जरूरत पड़े, तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है तो सुनो, तुम जो है बिस्तरा अलग कर लो, घर ही में अलग सो, नाराजगी का इजहार करो। जरा कुरान करीम को देखिए और कभी कभी आप अपने इलाके के इमाम साहब को, मौलाना साहब को कहिए कि थोड़ा थोड़ा कुरान का तर्जुमा हम लोगों को सुनाइए, ताकि पता चले कि कुरान समाज को किस तरह सुधारने की फिक्र लिए हुए हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहते हैं, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फइज़ूहुन्ना। ऐ मर्दों सुनो और दिल के कान से सुनो, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना। अगर किसी की बीवी बदमाश हो जाए, किसी की बीवी नाफरमान हो जाए, किसी की बीवी शरारत करे और उसकी शरारत का तुमको खौफ हो, उनकी नाफरमानी का तुम्हें डर हो, उनकी जो है बदतीनती का तुम्हें खदशा हो,
तो फयज़ूहुन्ना, ए मर्दो मारो मत, गाली मत दो, घर से भगाओ नहीं। फयज़ूहुन्ना, सबसे पहले बीवी को समझाओ कि तुम इस घर में आई हो, अगर तुम इस तरह करोगी तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा घराना इतना अच्छा है, तुम यहाँ आई हो, जब से तुम ड्रामा कर रही हो, ये कर रही हो, उसको अल्लाह रसूल का वास्ता दे करके फयज़ूहुन्ना समझाइए। कुरान कह रहा है कि बीवी बदमाशी करेगी, बीवी नाफरमानी करेगी, बीवी शरारत करेगी तो मारने की जरूरत नहीं, गालन गलौज करने की जरूरत नहीं, फयज़ूहुन्ना, उसको समझाओ। अगर समझा रहे हैं, समझाने के बावजूद नहीं समझ रही है, फयज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, अगर समझाने से नहीं समझ रही है, बार बार आप समझा रहे हैं, 1000 बार आप समझा चुके लेकिन असर नहीं हो रहा है, तो आप बिस्तरा अलग कर लीजिए। फिल मज़ाजिअ, सोने का सिस्टम अलग कर लीजिए। आप एक ही बिस्तरे पर सोइए, रुख बदल लीजिए। अगर अलग चौकी है आप उस चौकी पर चले जाइए, नाराजगी का इजहार कीजिए और ये जतलाइए कि तुम्हारी शरारत की वजह से हम इतने नाराज हैं कि हम जो है तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार नहीं। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, अगर बिस्तरा अलग करने के बावजूद अब उसको समझ में बात नहीं आ रही है, फिर भी वो शरारत पर उतरी हुई है, फिर भी बदमाशी कर रही है, तो आगे कुरान ने कहा, अब कह रहे हैं वद्रिबूहुन्ना, कि अब मारो। और मार की एक तशरीह मैंने आपको हदीस की रोशनी में बतलाई कि वला तद्रिबिल वजहा, चेहरे पर मत मारो, रिवायतों के मुताबिक नाजुक जगह पे मत मारो, मिसवाक से मारो, और इतनी तेज मत मारो कि जिस्म पर निशान और दाग पड़ जाए, खून आ जाए, ऐसी मार से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने को कहा है। कुरान ने पहले कहा कि बीवी बदमाशी करे, नाफरमानी करे तो पहले समझाओ, समझाने के बावजूद नहीं समझे तो फिर उसको जो है बिस्तरा अलग करो। अगर बिस्तरा अलग करने के बावजूद वो नहीं समझे तो फिर हल्की मार मारो। फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अगर मार के बाद उसको समझ में आ जाए कि अब मेरा शौहर मारने पर तैयार हो गया है, तो अब जो है जब वो सिलेंडर कर जाए तो अब पिछली शरारत उसको याद नहीं दिलाना है, पिछली बातें कुरेदनी नहीं है। अगर मार के बावजूद अगर उसको समझ में नहीं आए तो कुरान ने आगे एक आखिरी मरहला तय किया है। कुरान ने कहा कि एक आदमी लड़की के खानदान से लो और एक आदमी लड़के के खानदान से लो, दोनों को बिठाओ और ये दोनों मियाँ बीवी उसके सामने अपनी बात रखें। गोया कि अभी खानदान के सिर्फ दोनों तरफ से 2 आदमी होंगे जो पंचायती करेंगे इस मियाँ बीवी के झगड़े की। अभी समाज के मुखिया नहीं बैठेंगे, अभी समाज के सरपंच नहीं बैठेंगे। मर्द से कहा जा रहा है कि पहले समझाओ, नहीं समझे बिस्तरा अलग करो, बिस्तरा अलग करने के बावजूद नहीं समझे तो हल्की तंबीह के लिए तुम मारो। अगर उसके बावजूद वो न समझे तो फिर जो है आपस में हकम तय करो, एक मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से, और मियाँ बीवी अपने झगड़े और अपने मामले को उस पर सामने रखे। और उन पंचायती करने वाले से ये कहा गया कि आप जो है इस नीयत से बैठेंगे कि हम जो है दोनों के फरीक की बात सुन करके बीच बीच का ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि इन दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर जाए, आगे की जिंदगी इसकी गुजर जाए। अगर इसके बावजूद सुनो सफाई कर दिया, फिर थोड़ी दिन के बाद वही शरारत, अब निभाव की कोई शक्ल नहीं, तब कुरान ने कहा है कि अब तलाक मर्रतान, ये 4 मरहले से मर्द पहले गुजरे तब जाकर के तलाक की नौबत आनी चाहिए। जब निभाव की कोई शक्ल बाकी नहीं रहेगी तब जाकर तलाक की नौबत पड़ेगी। और यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर बीवी से मामूली गलती हो गई,
बीवी ने मामूली कोताही कर दी, अगर खाने में नमक की ज्यादती हो गई, अगर सास ससुर की खिदमत में थोड़ी कोताही हो गई, बच्चे को अगर डांट डपट दिया, तो मर्द उतावलू होता है, जज्बात में आता है और एक नहीं बल्कि तीनों तलाकें ठोक देता है और बीवी को बेघर कर देता है, बच्चे को जो है यतीम कर जाता है और क्या कहते हैं हंसता खेलता घराना मुरझा करके रह जाता है। ए नौजवानों, आज होश के नाखून लेने की जरूरत है। तुमने तलाक का गलत इस्तेमाल किया तो कानून मजबूर हो गया कि ऐसा सी गिरफ्त तुम्हारे लिए करे कि अगर तुमने 3 तलाक दी बीवी को तो बगैर जमानत के तुम 3 साल जेल की हवा खाओ और इस बीच के नानो नफका की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर हुकूमत ने डाल दी। कहां जाओगे इस मुल्क में रहते हुए? जब तुमने शरीयत के साथ खिलवाड़ किया तो अल्लाह ने ऐसा निजाम कायम कर दिया कि तुम चाहते हुए भी उस निजाम से निकल नहीं सकोगे। उसके बावजूद आपको मालूम है कि तलाक का जब कानून बना है तो सबसे पहले इस मुल्क में इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला इसी पूर्णिया की सरजमीन का इंसान था, जिसने 3 तलाक दिया कानून बनने के बाद और वो उसने जेल की हवा सलाखों के पीछे वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ। अब बतलाइए, ऐसे बेहोश होकर के मुसलमान जिंदगी गुजारेंगे? उसका कुरान क्या कहता है, आकाए दो जहां की जिंदगी और तालीमात क्या कहती हैं, इन सब से बेबहरा होकर के एकदम लाताल्लुक होकर के जिंदगी गुजारने का यही नतीजा हुआ करता है। इसलिए नौजवानों, आज तय करो कि इंशाअल्लाह समाज में जियोगे तो इस्लामी तालीमात को अपने सीने में बसा करके जियोगे। ए नौजवानों, याद रखो, अगर तुम्हारा कदम फिसल गया तो समाज गड्ढे में गिर जाएगा, अगर तुम्हारा कदम सही रुख पर गया तो समाज सुधर जाएगा। तारीख गवाह है कि जब भी नौजवानों ने अच्छा कदम उठाया है तो समाज में इनकलाब आया है।